عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اروند کیجریوال نے مظاہرہ کرنے والے کسانوں سے کی ملاقات، انتظامات کا لیا جائزہ۔ کسان تحریک مظاہرین نے بھینس کے سامنے بجایا بین، ویڈیو ہوا وائرل۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کو پولیس نے لیا حراست۔ کرناٹک ملی تنظیموں نے کسانوں کے بھارت بند کی تائید کا کیا اعلان۔ بی جے پی میں ہونے لگی تریپورہ کے وزیر اعلیٰ کی مخالفت۔ حاملہ خواتین پر مضر اثرات پیدا کر رہا ہے کورونا کا خوف، تحقیق میں کئی اہم باتوں کا انکشاف۔ بھارت بند کے پیش نظر ریاستی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کرے وزارت داخلہ کا بیان۔ مودی حکومت کسانوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ نوئیڈا میں دفعہ 144 کسان احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے کیا، کورونا سے بچاؤ کے لیے۔ اداکارہ پریانکا چوپڑا نے کسان تحریک کی حمایت کرتے ہوئے کسانوں کو بتایا غذائی سپاہی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 2030 تک 1 ارب سے زیادہ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وبا کے دوران ترکی کی اقتصادیات بحالی کے مرحلے کو کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ایران۔ پاکستانی بہنیں لیبا اور ثنا غلطی سے آ گئی ہندوستان، تحائف کے ساتھ ہوئی وطن واپسی۔ یونان پولیس چوکی پر حملہ، 5 پولیس اہلکار زخمی۔ نئی امریکی حکومت سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، چین کا آیا بیان۔ عالمی برادری ایرانی نواز حوثیوں کو دہشت گرد قرار دے، یمنی نائب صدر کا مطالبہ۔ ایران کے روحانی پیشوا خامنہ ای کے انتقال کا دعویٰ، دفتر کی تردید۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی پہلی خبر ہے، نئی دہلی سے مرکزی حکومت کی زراعت سے جڑے 3 قوانین کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کسانوں سے پیر کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ملاقات کر کے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کی سیوادار ہے۔ تینوں قوانین کے خلاف کسان پچھلے 12 دن سے دہلی میں مقیم ہیں اور مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر سے کئی دور کی بات چیت کے باوجود کوئی حل فی الحال نہیں نکل پایا۔ منگل کو کسانوں کی حمایت میں بھارت بند کا اعلان کیا گیا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں، کئی مزدور تنظیموں نے بند کو حمایت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ عام آدمی پارٹی نے بھی بند کی حمایت کی۔ کسان دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں اور حکومت سے زرعی قوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی مرکزی حکومت کے ذریعے پاس کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک دن بدن تیز ہوتی جا رہی۔ اس قانون کو رد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش سمیت درجن بھر ریاستوں کے کسان دہلی کی سنگو، ٹیکری، غازی آباد اور دیگر بارڈرز پر دھرنا و مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس درمیان نوئیڈا میں کسانوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں مظاہرین بھینس کے سامنے بین بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بھینس کے اوپر کیندر سرکار یعنی مرکزی حکومت لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کسان آندولن کی حمایت میں پیر کو قنوج میں ہونے والی کسان یاترا سے پہلے پولیس نے سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کو پیر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اکھلیش یادو پر کارروائی کی ہے۔ فی الحال پولیس سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کو حراست میں لے کر ایکو گارڈن لے کر گئی ہے۔ اس سے پہلے ان کو ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی ریاست کرناٹک کے اہم ملی تنظیموں اور جماعتوں نے ملک بھر میں جاری کسانوں کے احتجاج کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں کی جانب سے 8 دسمبر 2020 بروز منگل کو کیے جا رہے بھارت بند کی مکمل طور پر تائید کرنے کا ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلورو میں جاری کیے گئے تحریری بیان میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور دیگر ملی تنظیموں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 دسمبر بروز منگل کو کیے جا رہے بھارت بند کا بھرپور ساتھ دیں، اپنے کاروبار، تجارت، دکانوں کو بند رکھیں، ملک کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत अहले हदीस सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटक, ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक, कर्नाटक अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, अंजुमन इमामिया कर्नाटक, जुलूस मोहम्मदी कमेटी और सदाए इत्तेहाद कर्नाटक, इन तंजीमों ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए भारत बंद की तायीद का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर बिप्लब देव के खिलाफ उनकी पार्टी में ही मुखालिफत की आवाज़ उठने लगी है। इतवार को एक मीटिंग के दौरान बीजेपी कारकुनान ने अगरतला में पार्टी के आला लीडरान के सामने इस लीडर को हटाओ और बीजेपी बचाओ जैसे नारे लगाए। हालांकि बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी निगरां ऑब्जर्वर विनोद कुमार सोंकर ने कहा है कि पार्टी में इस तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। नाज़रीन, बहरान ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और बिलावास्ता तौर पर तकरीबन हर शोबे हयात को मुतासिर किया। मुहक्किकीन लगातार मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक कर रहे हैं, जिससे रोज़ाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। एक नई तहकीक में पता चला है कि कोरोना का खौफ हामिला ख़वातीन पर कई मुज़िर असरात मुरतब कर रहा है। मुहक्किकीन ने कहा है कि कोविड-19 से जुड़े मसाइल और सेहत की फ़िक्र ने हामिला ख़वातीन की डिप्रेशन, टेंशन और पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शरह को गहरा कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मंगल को किसान तंजीमों की अपील पर मुल्क भर में भारत बंद के पेश नज़र रियासत व मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने और अमन बरकरार रखने को कहा है। वज़ारत के मुताबिक मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक मुशावरत जारी किया है। मंगल को किसान तंजीमों ने मुल्क भर में भारत बंद की अपील की है। इस बंद की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और बहुत सी दूसरी तंजीमों और ट्रेड यूनियनों ने भी हिमायत की है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि अभी ये वक्त इम्तिहान लेने का नहीं है, बल्कि काश्तकारों की मुश्किलात को हल करने और उन्हें साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस लीडर सुनील जाखड़ ने पीर को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत किसानों के मामले पर हटदर्मी कर रही है और किसानों की बात सुनने के बजाय वो अपनी बात पर अड़ी है और अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को बांटने की पॉलिसी पर काम कर रही है। नाज़रीन, नोएडा इंतज़ामिया ने दिल्ली से मुल्हिक नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से वहाँ 2 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया। नोएडा इंतज़ामिया को खदशा है कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश, 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर को नए साल के मौके पर नोएडा में ज़्यादा भीड़ बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कोरोना के मामलात में इजाफे का इम्कान है। इसलिए दफ़ा 144 लगाने का फ़ैसला लिया गया है। इधर एक तबके का कहना है कि इन तारीखों को वजह बनाकर दरअसल नोएडा इंतज़ामिया किसान तहरीक में बढ़ रही भीड़ को भी रोकना चाहती है। वाज़ेह है, दफ़ा 144 नाफिज होने के बाद किसी भी जगह पर 4 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। नाज़रीन, अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने मुतनाज़ा ज़रिए बिल को लेकर जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। उन्होंने पंजाबी स्टार दिलजीत दोसंझ के ट्वीट को दोबारा शेयर किया और इस मसले के फौरी हल के लिए जाने का मुतालबा किया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि हमारे किसान हिंदुस्तान के ग़िज़ाई सिपाही हैं, उनके खदशात को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की ज़रूरत है। एक फ़रोग़ पज़ीर जमहूरियत की हैसियत से हमें यकीनी बनाना होगा कि इस बहरान का हल जल्द से जल्द हल हो जाए। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के एक नए मुताले में सामने आया है कि कोविड-19 की संगीन और देरपा नताइज की वजह से 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में बेहद गरीब लोगों की तादाद 1 अरब के पार हो जाएगी। मुताले में कोविड-19 से नजात पाने की मुख्तलिफ पहलुओं की वजह से पायदार तरक्की के अहदाफ, SDP पर पड़ने वाले असरात और वबा की वजह से अगली दहाई तक पड़ने वाले कसीर जिहती असरात का तज्ज़िया किया गया। ये मुताला UNDP और डेनो यूनिवर्सिटी पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स के बीच लंबे वक्त से चली आ रही शराकत दारी का हिस्सा है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि एक ऐसे दौर में कि जब कोविड-19 की वजह से मुतादिद ममालिक की इक़्तिसादियात को मंदी का सामना है, तुर्की की इक़्तिसादियात बहाली के मरहले को कामयाबी के साथ जारी रखे हुए है। सदर एर्दोगान ने बैनुल अक़वामी सरमायाकार सोसाइटी की तरफ से मुनक़िदा बैनुल अक़वामी सरमायाकारी सरबराही इजलास के लिए वीडियो पैगाम भेजा है। पैगाम में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और ताहाल लहरों की शक्ल में फैलना जारी रखे हुए, लेकिन तुर्की जैसे मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टमों के हामिल मुल्क वबा के ख़िलाफ़ ज़्यादा कामयाबी से जद्दोजहद कर रहे हैं।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ज़िला पहुंच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतवार की सुबह हिंदुस्तानी हुदूद में नादानिस्ता तौर पर दाखिल होने वाली पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 2 कमसिन बहनों को पीर के रोज़ हुक्काम ने वापस अपने वतन भेज दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 कमसिन बच्चियों जो इतवार की सुबह हिंदुस्तानी हुदूद में नादानिस्ता तौर पर दाखिल हो गई थी, उनको हुक्काम ने पीर के रोज़ ज़िला पहुंच की चिकंदा बाग इलाके के रास्ते से वतन वापस कर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कमसिन बच्चियों को तहाइफ के साथ वापस अपने वतन भेज दिया गया है। नाज़रीन, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में एक पुलिस चौकी पर हमले के नतीजे में 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक एथेंस के इलाके कोलोनोस की पुलिस चौकी पर कल 70 से 80 अफराद की ग्रुप ने पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। हमले के नतीजे में 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी ने अमेरिका के साथ बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की है। साउथ चाइना पोस्ट अखबार के मुताबिक वांग ज़ी ने कहा है कि अमेरिका में इंतज़ामिया की तब्दीली से वाशिंगटन की चीन की तरफ पॉलिसी एक मरतबा फिर गैर जानिबदार ना हो सकती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर इख्तिदार में इन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। नाज़रीन, यमनी ऐवान सदर आलम बरदरी से मुतालबा किया है कि वो ईरानी नवाज हुसी बागियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करे। यमनी खबर एजेंसी के मुताबिक नायब यमनी सदर अली मोहसिन सालेह ने सऊदी दारुल रियाद में अमरीकी उमूर खारिजा के मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ नायब मुशीर डेविड शेंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सालेह ने हुसी बागियों पर सऊदी अरब और यमन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का इल्ज़ाम लगाते हुए आलमी बरदरी से उन्हें दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की वफ़ात से मुताल्लिक़ ख़बर गर्दिश कर रही है। रूसी अखबार स्पुतनिक के फ़ारस न्यूज़ एजेंसी के तवस्सुत से ख़बर जारी की है, जिसमें ख़ामेनेई के दफ्तर एहलकार मेहदी फ़ज़ाइली ने अपने ट्वीट में वफ़ात की ख़बर को गैर मुसद्दिक़ा करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह क़रीब मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी